Hello everyone. In the previous class, we had discussed about the third dynasty of Delhi Sultanate, that was the Tughlaq dynasty. And today we will discuss about the remaining two dynasties, which are the Sayyid dynasty and the Lodhi dynasty. So starting with the Sayyid dynasty. So as we read, Timur invaded India in 1398 CE during the time of Nasiruddin Muhammad Tughlaq. So Nasiruddin Muhammad Tughlaq, who was the last ruler of Tughlaq dynasty and was not a strong ruler, तो उनके टाइम पे तिमूर ने इन्वेड किया था इंडिया को in 1398 CE. The city of Delhi was sacked by his army and a lot of wealth was looted, after which he returned to his capital Samarkand. तो तैमूर के हमले में दिल्ली को बहुत प्लंडर किया गया था, यहाँ से बहुत ज़्यादा वेल्थ जो थी वो अपने साथ ले गया था एंड he returned back to his capital Samarkand. But Sayyid dynasty कैसे existence में आई? So जब तैमूर was returning back, he appointed Khizr Khan as the ruler of Multan, who then attacked Delhi and led to the establishment of Sayyid dynasty. तो जब तैमूर ने समरकंद वापस जाते टाइम खिज़र खान को मुल्तान में अपॉइंट कर दिया था, तो उसके बाद में खिज़र खान ने दिल्ली में अटैक किया और सैयद डायनेस्टी को वहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया. सो दिस लेड टू द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सैयद डायनेस्टी which ruled from 1414 to 1450 CE. Now, according to the book Tarikh-e-Mubarak Shahi, written by Yahya bin Ahmad Sirhindi, Sayyids were descendants of Prophet Muhammad. तो यहिया बिन अहमद सरहिंदी की जो बुक थी तारीख-ए-मुबारक शाही, उसके अकॉर्डिंगली सैयद्स वर द डिसेंडेंट्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद. Sayyids used to put a pointed cap called kullah and were known as kullah daran, which means the cap wearers. तो जो सैयद्स थे वो एक पर्टिकुलर टाइप की पॉइंटेड कैप पहनते थे जिसको कुल्ला बोलते थे, एंड जो उनको पहनते थे दैट इज द कैप wearers were called as kullah daran. Then we come on to the rulers of Sayyid dynasty. तो सैयद डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया था खिज़र खान ने, who ruled from 1414 to 1421. Then came Mubarak Shah, who ruled from 1421 to 1434. Then Muhammad Shah, who ruled from 1434 to 1445. And finally Alam Shah, who ruled from 1445 to 1451. So these were the four rulers of Sayyid dynasty. Now the first one was Khizr Khan, who was the founder of the dynasty. He established the dynasty but remained a vassal of Timur's successor. तो although खिज़र खान ने जो सैयद डायनेस्टी थी वो इस्टेब्लिश कर ली थी दिल्ली में, बट ही रिमेन्ड अ वेसल ऑफ तिमूर्स सक्सेसर. तो जो तिमूर के सक्सेसर थे उसके आगे जो रूलर्स थे उन्हीं के कंट्रोल के अंडर खिज़र खान काम करता था. ऑल्दो ही इस्टेब्लिश्ड हिज ओन डायनेस्टी, बट जो सुप्रीम हेड थे वो तिमूर के सक्सेसर थे और खिज़र खान उनके सबऑर्डिनेटेड था, उनके कंट्रोल में था. देन सेकंड रूलर वाज मुबारक शाह, who made attempts to stabilize the kingdom and launched campaigns to reclaim lost territory but was assassinated. तो मुबारक शाह ने अटेम्प्ट किए कि वो अपनी किंगडम को स्टेबलाइज कर ले, अपनी जो टेरिटरी दिल्ली के अराउंड वाली उसने लूज कर ली थी वो वापस ले आए, बट इन दैट अटेम्प्ट ही वाज assassinated and murdered. Then came Muhammad Shah, who was a weak ruler who faced significant internal turmoil. उसके बाद में जो मोहम्मद शाह थे ही वॉज ऑल्सो अ वीक रूलर और इंटरनल काफ़ी रिबेलियन थे, इंटरनल इंस्टेबिलिटी थी मोहम्मद शाह के टाइम पे. और फाइनली द फोर्थ वन वॉज आलम शाह, हु वॉज द फाइनल रूलर, वॉज एन इनइफेक्टिव रूलर एंड ही एब्डिकेटेड द थ्रोन. तो आलम शाह वॉज द फाइनल रूलर जो कि इनइफेक्टिव रूलर थे और खुद ही सरेंडर्ड द थ्रोन, ही एब्डिकेटेड द थ्रोन, लेफ्ट द थ्रोन. So now some features of Sayyid dynasty. So ruling for 37 years, the dynasty was characterized by instability, weakened central authority following Timur's invasion, and constant struggles against the regional kingdoms. तो 37 साल तक सैयद डायनेस्टी ने रूल किया था और इसके रूल में जो हमें फीचर्स देखने को मिलते हैं दैट वर ऑफ इंस्टेबिलिटी, बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी थी, जो सेंट्रल अथॉरिटी थी वो बहुत वीक थी स्पेशली आफ्टर तिमूर्स इन्वेजन. तो तिमूर के जो आगे जो वंशज थे उन्हीं का मेन रूल था, वाइल जो ये सैयद्स थे दे वर
relatively subordinate to them. तो जो सेंट्रल अथॉरिटी थी दिल्ली की उस टाइम पे वीक थी और साथ में कांस्टेंट स्ट्रगल्स होते रहते थे, इनकी लड़ाइयाँ होती रहती थी विद द रीजनल किंगडम्स विच वर अराउंड द दिल्ली रीजन. Then Khizr Khan captured Delhi but did not take the title of Sultan. Instead, he used the title of Raite Ala. तो खिज़र खान ने दिल्ली को कैप्चर कर लिया था, अपनी नई डायनेस्टी वहाँ पे इस्टेब्लिश कर ली थी, बट उसने सुल्तान का टाइटल नहीं लिया था. उसकी जगह पे ही यूज्ड द टाइटल रायते आला. देन सैयद्स के टाइम पे टेरिटोरियल डिक्लाइन देखने को मिलता है दिल्ली सल्तनत का. सो द सल्तनत्स पावर वाज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड with territorial control mostly limited to Delhi and nearby region. तो दिल्ली सुल्तान का जहाँ एपेक्स था, जहाँ प्राइम रीजन था उसके टेरिटोरियल एक्सटेंट का, दैट वाज अंडर द तुगलक्स. वाइल जो अगली डायनेस्टी थी सैयद डायनेस्टी, उनके टाइम पे दिल्ली सल्तनत का जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन था वो बहुत कम था. दैट वाज लिमिटेड टू दिल्ली एंड नियर बाई रीजन्स. बस दिल्ली के आसपास वाले रीजन्स तक ही वो लिमिटेड था. देन एक्सटर्नल थ्रेट्स भी बहुत थे. फॉर एग्जाम्पल द रूलर्स स्ट्रगल्ड अगेंस्ट द शर्की सुल्तान्स ऑफ जौनपुर, द खोखर्स इन पंजाब एंड अदर रीजनल चीफ्स. तो इनकी इंटरनल स्किर्मिशेस के साथ साथ में एक्सटर्नल थ्रेट्स भी थे इनको. फॉर एग्जाम्पल शर्की रूल्स ऑफ जौनपुर, शर्की सुल्तान्स ऑफ जौनपुर जिनसे इनकी लड़ाई होती रहती थी. देन खोखर्स थे पंजाब में और दूसरे भी रीजनल चीफ्स थे. तो एक्सटर्नल थ्रेट्स भी थे, इंटरनल इंस्टेबिलिटी भी थी इनके रूल में. So now we come on to the end of the rule. In 1451, the Sayyid dynasty ended. So the last ruler, Alam Shah, he voluntarily retired to Badon. He left the throne, allowing Behlul Lodi, who was an Afghan noble, to seize control of Delhi and establish the Lodi dynasty. तो जो सैयद्स के लास्ट रूलर थे आलम शाह, हु वॉज अ वीक रूलर, उसने अपना जो तख्त था वो खुद ही सरेंडर कर दिया था, छोड़ दिया था. ही वॉलंटरली रिटायर्ड फ्रॉम दैट. और उसकी वजह से वहाँ पे एक पावर वैक्यूम क्रिएट होता है बिकॉज कोई सेंट्रल पावर थी नहीं वहाँ पे. सो दिस अलाउड द अफगान्स बहलूल लोधी टू सीज द कंट्रोल ऑफ दिल्ली एंड एस्टेब्लिश द लोधी डायनेस्टी इन द दिल्ली सल्तनत. तो इस तरह से जब पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ, कोई सैयद्स का रूलर स्ट्रांग नहीं था, तो बहलूल लोधी ने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, दिल्ली का कंट्रोल ले लिया और अपनी नई लोधी डायनेस्टी को स्टार्ट कर दिया. सो द डायनेस्टी दैट इज द सैयद डायनेस्टी इज कंसिडर्ड अ शॉर्ट लिव्ड ट्रांजिशनल फेज दैट स्ट्रगल्ड टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन नॉर्दर्न इंडिया आफ्टर द डिवेस्टेटिंग इन्वेजन ऑफ तिमूर इन 1398. तो इस तरह से सैयद डायनेस्टी का एंड होता है. सैयद डायनेस्टी में इंटरनल इंस्टेबिलिटी थी, एक्सटर्नल थ्रेट्स थे और रूलर्स भी स्ट्रांग नहीं थे. सो दिस वाज द सैयद डायनेस्टी एंड फाइनली दिस लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द लास्ट एंड द फिफ्थ डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत, दैट वाज द लोधी डायनेस्टी. सो नाउ वी कम ऑन टू द लास्ट डायनेस्टी, दैट वाज द लोधी डायनेस्टी इन दिल्ली सल्तनत. So Lodhi dynasty ruled from 1450 to 1526. So it was established by Behlul Khan Lodhi, who was the chief of Pashtun Lodhi tribe. So ये अफगान ओरिजिन के थे, पश्तून लोधी ट्राइब थी इनकी, and it was established by Behlul Khan Lodhi. It was the fifth and the last dynasty of Delhi Sultanate. तो दिल्ली सल्तनत की ये लास्ट डायनेस्टी थी, फिफ्थ डायनेस्टी थी. Then the first ruler is Behlul Lodhi, who ruled from 1451 to 1488. So Lodhi dynasty was established by Behlul Khan Lodhi, who was the chief of Pashtun Lodhi tribe. तो इनकी ट्राइब का नाम था लोधी और इनका ओरिजिन था वो अफगान पश्तून ओरिजिन के थे. And this dynasty was established by Behlul Khan Lodhi. So he was one of the Afghan Sardars who established themselves in Punjab after the invasion of Taimur. तो तैमूर के इन्वेजन के बाद जब उनका पंजाब के अराउंड रीजन में स्ट्रॉन्ग होल्ड हो गया, उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया पंजाब रीजन में, तो उन्हीं में से एक अफगान सरदार थे बहलूल लोधी, विच लेटर ऑन टुक ऑन द पावर एंड बिकेम द रूलर ऑफ और द फाउंडर ऑफ द नेक्स्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत, दैट वाज द लोधी डायनेस्टी. So he overthrew the last Sayyid ruler in Delhi to establish the Lodhi rule.
He took the title of खाने खानन, मतलब खानों में खान या खानों का खान. He did not consider himself to be a king who would sit on the throne, but an Afghan peer seeking equality rather than subordination from Afghan nobles. तो बहलोल खान लोधी के टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसमें he was not a very strict ruler. Rather, he would not sit on the throne and he considered himself like an equal among the other Afghan nobles. तो एक सबऑर्डिनेशन का यहाँ पे ज़्यादा स्कोप नहीं था बहलोल खान लोधी के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन में. रादर इट वाज मोर ऑफ इक्वालिटी रादर देन सबऑर्डिनेशन. देन his son Sikandar Lodhi became the next ruler who ruled from 1489 to 1517. So he was the son of Behlul Lodhi and conquered Bihar and western Bengal. His pen name was Gulrukhi. So Gulrukhi was his pen name which he used at the end of his writings or compositions. He founded the city of Agra and shifted his capital from दिल्ली टू आगरा इन 1506. तो हमने पढ़ा था कि जब दिल्ली सल्तनत की फर्स्ट डायनेस्टी आती है उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ही मेंटेन्स हिज सेंट्रल एरिया ऑफ पावर अराउंड लाहौर रीजन. सो उसकी कैपिटल लाहौर में थी उस टाइम पे. उसके बाद इल्तुतमिश ने जो कैपिटल थी वो लाहौर से दिल्ली को शिफ्ट कर ली थी. उसके बाद में जो बाकी डायनेस्टीज थी उसमें दिल्ली वॉज द मेन पावर सेंटर. एंड इन लोधी डायनेस्टी सिकंदर लोधी he founded the city of Agra and उसने जो कैपिटल थी वो दिल्ली से आगरा शिफ्ट कर ली थी in 1506. For the development of agriculture, he introduced Gaz-e-Sikandari, that was Sikandar's yard of 32 digits and it was equal to 39 inches. So to measure the cultivated fields, जो उस टाइम पे खेत थे उनको मेजर करने के लिए उसने एक अपना यूनिट चलाया था, that was known as Gaz-e-Sikandari. जैसे आजकल नॉर्दर्न इंडिया में यूज़ होता है वर्ड कि ये फॉर एग्जांपल प्लॉट है या कोई फील्ड है, ये इतने गज की है, तो दैट नेम इज डिराइव फ्रॉम हेयर. ऑल्दो दिस यूनिट गज ए सिकंदरी इज नॉट यूज्ड नाउ ऑफिशियली. तो दिस वाज एन instrument used by, or the instrument for agricultural measurement, not actually the instrument, rather a yardstick or a measure that was introduced by Sikandar Lodhi for measuring the cultivated fields, that was Gaz-e-Sikandari. Then the next ruler was Ibrahim Lodhi, who ruled from 1517 to 1526. He was the son of Sikandar Lodhi. He was the last king of Lodhi dynasty and the last ruler of Delhi Sultanate. Ibrahim Lodhi asserted the absolute power of Sultan and was a cruel ruler. तो स्टार्टिंग में हमने देखा कि बहलोल लोधी वॉज मोर ऑफ एन इगैलिटेरियन पर्सनैलिटी, वाइल जो इब्राहिम लोधी है उसका जो पोता था ही वॉज अ क्रूअल रूलर जो कि एब्सोल्यूट पावर को अपने हाथ में रखता था. तो यहाँ पे देयर वॉज सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन द हैंड्स ऑफ इब्राहिम लोधी और वो एक क्रूर राजा था. बिकॉज ऑफ दिस मैनी ऑफ हिज नोबेल्स रिबेल्ड अगेंस्ट हिम. तो उसके इसी क्रूअल रूल की वजह से उसकी जो एब्सोल्यूट मोनार्की थी उसके अगेंस्ट में काफ़ी सारे जो नोबेल्स थे उस टाइम पे उन्होंने भी रिबेल किया था अगेंस्ट इब्राहिम लोधी और वो इसको पावर से हटाना चाहते थे. सो नाउ वी कम ऑन टू द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. तो रूलर्स हमने 3 पढ़ लिए, Behlul Lodhi, Sikandar Lodhi and Ibrahim Lodhi. So these were the main 3 rulers. Now we come on to some of the contributions and characteristics of Lodhi dynasty. So the administration was a unique decentralized Afghan system where the Sultan was viewed as first among the equals among his nobles. Behlul Khan Lodhi ke time pe he was like equal amongst the equals, while उसके बाद वाले जो रूलर्स थे सिकंदर लोधी और फाइनली इब्राहिम लोधी उस टाइम पे द सुल्तान वाज कंसिडर्ड एज फर्स्ट अमंग द इक्वल्स. मतलब जो सुल्तान था उसकी पावर जो थी वो सबसे ज़्यादा थी उस टाइम पे. तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्दो डिसेंट्रलाइज थी बट जो पावर थी मेन स्ट्रॉन्ग होल्ड था जो फाइनल से था दैट वाज ऑफ सुल्तान. देन न्यूमिस्मेटिक्स, ही इंट्रोड्यूस्ड द बहलोली कॉइन्स विच रिमेन्ड इन सर्कुलेशन टिल द टाइम ऑफ अकबर. तो लोधिस के टाइम पे बहलोली कॉइन्स आए थे जो अकबर के टाइम तक
सर्कुलेशन में रहे थे। देन आर्किटेक्चर की बात करें तो दैट इज नोन फॉर क्रिएटिंग टूम्स एंड बिल्डिंग्स विद गार्डन्स। तो गार्डन्स एक बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इनके। तो और इसकी एक बड़ी एग्जांपल है दैट इज द लोधी गार्डन्स इन दिल्ली। So these were some of the features of Lodhis. Now finally we come on to the end of Lodhis and Delhi Sultanate. Now, Governor of Punjab, Daulat Khan Lodhi, he sent a letter to Babur to invite him to invade India. तो जैसे अभी हमने देखा कि इब्राहिम लोधी वॉज अ क्रूअल रूलर, तो उसके अगेंस्ट रिबेलियंस हो रहे थे, लोग उसको पावर से हटाना चाहते थे। तो इसी के चलते जो पंजाब का गवर्नर था उस टाइम पे, दौलत खान लोधी, उसने बाबर को एक लेटर भेजा और उसको इनवाइट किया कि वो इंडिया पे अटैक करे और इब्राहिम लोधी को पावर से हटा दे। सो दिस इवेंचुअली लेड टू द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। तो बाबर ने ये इनविटेशन जो था वो एक्सेप्ट कर लिया और देन there is this first battle of Panipat in 1526 which was fought between Babur and Ibrahim Lodhi, where Lodhis were defeated and Babur became victorious. और जैसे ही बाबर आ जाता है तो दैट मार्क्स द एंड ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड द बिगिनिंग ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। सो दिस मार्क्ड द एंड ऑफ लोधी डायनेस्टी एज वेल एज द दिल्ली सल्तनत। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो 1526 में होती है उसमें बाबर जीत जाता है और लोधीस हार जाते हैं, जिसी के साथ लोधी डायनेस्टी जो है उसका अंत हो जाता है। एंड लोधी डायनेस्टी के साथ साथ दिल्ली सल्तनत जिसमें हमने 5 डायनेस्टीज पढ़ी उसका भी एंड हो जाता है और इसी के साथ में मुगल एम्पायर जो है वो स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम बाबर। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सैयद एंड लोधी डायनेस्टी and in general about all the 5 dynasties of Delhi Sultanate. तो these were the 5 dynasties of Delhi Sultanate और next video में हम discuss करेंगे about the administration during the times of Delhi Sultanate.